Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important MCQs of the topic line for MHTC. All these problems are very important for this exam MHTCET, and in the last lecture we have discussed all the formulas of the topic line, and all those formulas were very important. So students, start to solve this question number 1. Before that, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get newly uploaded videos. So students, this is my first problem of the topic line for MHTCT, and this question is vector equation of the line passing through this point I plus 2j plus 3k and perpendicular to these two vectors I plus j plus k and 2i minus j plus k. So I have to find the vector equation of the line passing through this point A, whose position vector is a bar. Let this is the point A, whose position vector is a bar I plus 2j plus 3k, and this line is perpendicular to these two vectors. This line passing through the point A is perpendicular to these two vectors. So let these vectors are vector P and vector Q. So let this vector P and let this is the vector Q. So here vector P is given as I plus j plus k, and this second vector is Q, which is given as 2i minus j plus k. So the equation of line passing through the point A and parallel to vector B is R vector equal to A vector plus lambda times B vector. This is the equation of line passing through point A and parallel to vector B. अब मुझे ये फाइंड आउट करने का है कि ये जो लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ये लाइन किस वेक्टर को पैरेलल होगी. सो here are the two vectors P and Q which are perpendicular to the vector P cross Q, and already the line passing through the point A is perpendicular to vector P and vector Q. So this line L, let this is the line L, this line is parallel to vector P cross Q. Okay, so here I have to replace this B vector which is parallel to the line by P cross Q. तो मेरा इक्वेशन इस तरह से बनेगा R vector equal to A vector plus lambda times the given line is parallel to vector P cross Q. So first I have to find this vector P cross Q. So the vector P cross Q is, first row is I plus ijk, second row components of vector P are 1 1 1. See this vector P, and the components of vector Q are 2 minus 1 1, and like this vector P cross Q is 1 plus 1 2i, 1 plus 1 minus 2 minus 1, that is plus j minus 3k. 1 plus 1 2, 1 minus 2 minus 1 plus 1 minus 1 minus 2 minus 3k. So this is the vector P cross Q. So my equation becomes R vector equal to A vector. So A vector is given as I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k plus lambda times P cross Q vector. So here P cross Q vector is 2i plus j minus 3k. So this is the equation of line passing through this point here and perpendicular to these two vectors, and this is in the option I r bar equal to I plus 2j plus 3k plus lambda times 2i plus j minus 3k. So here option C is correct. So this was the question number 1.
Now move to the next question number 2. Okay, so this is the second question which I have to solve, and in this question I have to find the point of intersection of these two lines. So to find the point of intersection, मैंने पहले से ही दो लाइन के इक्वेशन लिख के रखे हैं. So let the first line d1 is x plus 1 by minus 10 equal to this line is first and this is line second. So let this line is L1 and let this line is L2. So to find the point of intersection of these two lines, I will write the coordinates of any point on this line. So any general point on this line has coordinates. Any general point on this line has coordinates. इस लाइन का कोई भी एक जनरल पॉइंट लिखेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा. सो यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिलेगा बाय इक्वेटिंग फर्स्ट रेशो टू लैम्डा. लैम्डा से इक्वेट करके मुझे x की वैल्यू मिलेगी -10 लैम्डा -1. y की वैल्यू मिलेगी -लैम्डा -3 और z कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे लैम्डा +4. So these are the coordinates of any point on this line, and the coordinates of any point on the second line L2, x coordinate, y coordinate और z coordinate क्या होगा. By equating all these ratio to mu, x coordinate मिलेगा मुझे -mu -10 -3 mu -1 and z coordinate is 4 mu +1. Now see students, if these lines intersect, अगर ये दोनों लाइन intersect होती हैं, so if this is the line L1 and if this is the line L2 and if this line intersect at point P, then the general point will coincide. It means this x coordinate and this x coordinate will be same, this y coordinate and this y coordinate will be same, this z coordinate and this coordinate will be same if the lines intersect. So we will equate these x, y and z coordinates. We will equate these x, y and z coordinates. So मेरा x coordinate है L1 लाइन का -10 लैम्डा -1, L2 लाइन का x coordinate देखिए -mu -10. तो यहाँ से मेरा फर्स्ट इक्वेशन मिलता है -10 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -9. ओके, अब मैं y कोऑर्डिनेट इक्वेट करता हूँ. L1 का y कोऑर्डिनेट है -लैम्डा -3, L2 का y कोऑर्डिनेट है -3 म्यू -1. तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा -लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 2. एंड बाय इक्वेटिंग z कोऑर्डिनेट आई विल गेट lambda plus 4, which is the z coordinate of line L1, and z coordinate of line L2 is 4 mu plus 1. So यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगा लैम्डा -4 म्यू इक्वल टू -3. लैम्डा -4 म्यू इक्वल टू -3. सो मैं ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करता हूँ. सो बाय एडिंग दिस टू इक्वेशंस, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करता हूँ. एडिंग दिस two equations, plus lambda minus lambda will get cancelled, minus mu 3 mu minus 4 mu 3 mu minus 4 mu minus mu 2 minus 3 minus 1. तो इस तरह से मुझे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1. एंड आई हैव दिस पॉइंट, म्यू वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन L2. तो इस लाइन पे मैं लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग म्यू इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन म्यू इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. सो म्यू इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो -1 -10 -11 -3 -1 -4 और 4 + 1 क्या होगा 5. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स -11 -4 5 -11 -4 5. This is in the last option D. So this is the procedure to find the point of intersection of the two lines, and this was the question number 2.
Now we will solve the next question number 3. So students, please see all the questions carefully. सभी questions important है. Selected questions में आपको solve करके दे रहा हूँ. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको MST CT एग्जाम में फेस करने के हैं. तो यहाँ पे मुझे लाइन का इक्वेशन दिया है x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 4/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/-2. तो मुझे पूछा है दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट. ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है. तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ही चेक करता हूँ. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2 1 0. तो इस पॉइंट को मैं इस लाइन के इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 माइनस 2/1. तो ये रेशो मिलेगा मुझे 0. अब y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए 1 माइनस 4/2 दिस इज माइनस 3/2. तो यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है, यहाँ पे माइनस 3/2 मिल रहा है. सो इट मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन लाइन. Now the second option I have to check in which coordinates are 0 0 0. origin चेक करेंगे तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2/1 इक्वल टू 0. अब y कोऑर्डिनेट के लिए चेक करेंगे 0 minus 2/1 is not 0. This is what? minus 2. अब y कोऑर्डिनेट के लिए चेक करेंगे सो 0 minus 4/2 which is also equal to minus 2. z कोऑर्डिनेट के लिए चेक करेंगे तो z इक्वल टू 0 0 plus 4/-2 which is also equal to minus 2. So all the three ratios are equal, minus 2 minus 2 minus 2. It means this point B 0 0 0 is satisfying the given equation. It means this line is passing through point 0 0 0, that is origin. So this was the question number 3. See the next question number 4. I have to find the length of the perpendicular. Length of the perpendicular find out करने की है. So see here, this is my given line. उसका इक्वेशन मैंने पहले से लिखा है. तो क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट 2 minus 3 1 on this line. So let this is the given point P whose coordinates are 2 minus 3 1 and this is my given line L. Let this is the line L. इस लाइन को हम L कहेंगे और यहाँ से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करने की. तो मैं m इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कंसिडर करता हूँ. सो m इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन L. तो उस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ. जनरल पॉइंट लिखूंगा m, that will be the foot of the perpendicular. So from this equation I have to write x coordinate, y coordinate and z coordinate in terms of lambda. That will be the general point. तो general point क्या होगा 2 lambda minus 1 equating first ratio to lambda, equating second ratio of y to lambda. Y coordinate will be 3 lambda plus 3 और तीसरा रेशो इक्वेट करके मुझे मिलेगा minus lambda minus 1. So this is my foot of the perpendicular 2 lambda minus 1 3 lambda plus 3 minus lambda minus 1. Okay, now I will write the direction ratios of PM. Direction ratios of this PM. PM के direction ratios लिखेंगे. So this is x2, this is x1, y1, z1 and this point is x2, y2, z2. So direction ratios of the line passing through the point x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. तो यहाँ से direction ratios of PM मिलेंगे मुझे 2 lambda minus 1 minus 2, 2 lambda minus 3, 3 lambda plus 3 और ये plus 3 हो जाएगा 3 lambda plus 6 minus lambda minus 1 minus 1 it will be minus 2. Okay, so these are the direction ratios of PM. तो इन direction ratios को मैं कहता हूँ let this is A1, this is B1 and this is C1. Now see the direction ratios of this line. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज 2 3 minus 1. So direction ratios of the line L are
2, 3, minus 1, which is A2, B2, C2, which is what? A2, B2, C2. So as the line L is perpendicular to PM, लाइन L PM को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0। सो A1 A2 यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 B1 B2 plus B1 B2 plus 3 into B2 is what? 3 lambda plus 6 C1 C2 यानी ये हो गया B1 B2 C1 C2 यानी what? -1 into माइनस लैम्डा माइनस 2। सो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 18 plus lambda plus 2 equal to 0. So it is 14 lambda 14 lambda plus 14 equal to 0। तो यहाँ से मेरा लैम्डा बन गया -1। अब लैम्डा -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, इसमें लैम्डा इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे यम पॉइंट मिलेगा एंड यम इज व्हाट? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यम के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे -2 -1 -3 प्लस 3 0 प्लस 1 -1 0। सो हियर इज माय फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यम has coordinates -3 0 0। Now I can find the length of the perpendicular PM by distance formula. So this here is x coordinate -3. So -3 distance formula root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square। -3 -2 -5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 9, बाद में हो जाएगा 1 and like this the length of the perpendicular is root of 35। So students ये प्रोसीजर से अगर आप सॉल्व करते हैं, इसके फार्मूला भी है वेक्टर फॉर्म में और वो फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो दैट फार्मूला इज ऑल्सो करेक्ट, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए। लेकिन यहाँ से आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मिलता है, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स भी आपको इसमें मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए तो आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलने के बाद आपको डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी मिल जाएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें फिर से मुझे 2 लाइंस के इक्वेशन दिए हैं और मुझे पूछा है if the lines are intersecting or not intersecting and their point of intersection is also given. So which option is correct? Now we have to check this. So this is line L1 and this is line L2. So let this is the line L1, let this is the line L2। तो L1 लाइन का हम जनरल पॉइंट लिखेंगे, L1 लाइन पे जनरल पॉइंट लिखेंगे by equating all these ratios to लैम्डा को इक्वेट करके यहाँ से मुझे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 लैम्डा प्लस 1, y सेकंड रेशियो इक्वेट कीजिए लैम्डा से, सो दैट विल बी माइनस लैम्डा प्लस 1 और z कोऑर्डिनेट z प्लस 1 इक्वल टू 0, z कोऑर्डिनेट होगा -1। अब मैं L2 लाइन का जनरल पॉइंट लिखता हूँ। सो L2 लाइन पे जनरल पॉइंट लिखता हूँ इक्वेटिंग टू म्यू। तो यहाँ से मुझे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा देखिए। सो इट विल बी 2 म्यू प्लस 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन L2, 2 म्यू प्लस 4, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y प्लस 0 बाय 0 इक्वल टू म्यू, तो y मिलेगा 0, z plus 1/3, so it will be 3 mu minus 1। Now if these lines will intersect,
अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट, जनरल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट करता हूँ तो 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 4। सेकंड इक्वेशन मिलेगा माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन मिलेगा माइनस 1 इक्वल टू 3 म्यू माइनस 1। तो यहाँ से मुझे लैम्डा मिलेगा 1, यहाँ से मुझे म्यू मिलेगा 0। अब अगर लैम्डा 1 और म्यू 0 इसको सेटिस्फाई करते हैं थर्ड इक्वेशन को, तो मेरी लाइन्स इंटरसेक्ट होगी। इफ दिस वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू आर नॉट सेटिस्फाइंग द थर्ड इक्वेशन देन द लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट। तो इसमें मैं लैम्डा अगर 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 + 1 4 और म्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 4 4 इक्वल टू 4 मिला है। So these values intersect each other for lambda equal to 1 and mu equal to 0. So lines are intersecting, lines intersect हो रही है। लेकिन थर्ड फोर्थ ऑप्शन में मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिया है, तो इसमें से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है वो भी हम चेक करेंगे। तो इस लाइन म्यू इक्वल टू 0 लिखता हूँ मैं L2 के जनरल पॉइंट में। L2 के जनरल पॉइंट में मैं म्यू इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये जनरल पॉइंट है। तो यहाँ से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा 4। ये देखिए ये म्यू 0 0 म्यू इक्वल टू 0 यानी ये -1, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 0 -1। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 0 -1 नहीं है। सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग but the point of intersection is 4 0 -1. Okay students, so now next see the question number 6. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मैंने यहाँ पहले से फॉर्मूला लिख के रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स। So let this first line is L1 whose equation is r equal to 4i minus j plus lambda into i plus 2j minus 3k और a second line L2 उसका इक्वेशन दिया है r इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 4j माइनस 5k। तो ये मेरा फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो उसके लिए मुझे ये लिखने का है कि फर्स्ट लाइन किस पॉइंट से पास हो रही। तो दोनों इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर के फॉर्म में है। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग एंड दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन रेशोज। यहाँ से मुझे क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशोज। और दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिंग। तो फर्स्ट लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, देखिए 4 -1 0 और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है 1 2 -3। सेकंड लाइन L2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x2 y2 z2, तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मिलेंगे, देखिए 1 -1 2 एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ सेकंड लाइन, इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है 1 4 -5, इसके डायरेक्शन रेशोज 1 2 -3, पॉइंट इज 4 -1 0। तो अभी मुझे सब वैल्यूज मिल गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ b1 c2 b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 - a1 a2 c1 - a1 c2 का होल स्क्वायर और लास्ट में a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। यानी ये डिनोमिनेटर में ये जो टर्म्स है दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो इसका आप वेक्टर फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। a2 - a1 डॉट फार्मूला क्या है, a2 - a1 dot b1 cross b2 by mod of b1 cross b2. So this is the formula for shortest distance of these two lines. तो ये फार्मूला भी यूज करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला लिखा है। तो अब देखिए मैं लिखूंगा x2 - x1, तो मेरा x2 - x1 क्या होगा, ये x2 है ये x1 है, 1 - 4 -3 y2 - y1 -1 -1 प्लस 1 बनेगा 0, z2 - z1 2 - 0 इज 2
अब A1 B1 C1 है 1 2 -3 1 2 -3 एंड A2 B2 C2 1 2 -3 ओके। A1 B1 C1 A2 B2 C2 देखिए ये है 1 4 -5। अब नीचे -3 का को-फैक्टर का स्क्वायर लिखने का है, सो इट विल बी -10 + 10 + 2 का स्क्वायर मिलेगा -10 -5 ये भी 2 का स्क्वायर मिलेगा और ये देखिए ये 4 - 2 2 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो इस तरह से इसमें फॉर्मूले में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम अगर सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलेगी -2 और ये मिलेगा √12 दैट इज 2√3 सो इट इज 1/√3 सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स इज व्हाट 1/√3 and this 1/√3 is in the second option. So this was the procedure or formula to find the shortest distance between these two lines. Okay, so now we will see the next question number 7. इसमें दिया है if the lines are intersecting, अगर lines intersect होती हैं, if these two lines are intersecting, this is the first line L1 and this is the second line L2. If these two lines are intersecting each other, I have to find the value of k. तो यहाँ पे मैंने ये लाइंस के इक्वेशन लिखे हैं। तो लाइंस इंटरसेक्ट अगर होती हैं, if the lines are intersecting, then shortest distance between these two lines will be equal to 0 and this implies this determinant is 0. लास्ट प्रॉब्लम में मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ। ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो इसमें अगर लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 बनेगा, यानी ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। तो यही डिटर्मिनेंट मैंने इसमें 0 लेके फॉर्मूला लिखा है। So this determinant x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 equal to 0। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। So this is equal to x2 में आप लिखिए, पॉइंट देखते हैं पहले। दिस लाइन L1 is passing through the point x coordinate 1, this line is passing through the point x - x1 y - y1 z - z1 1 और डायरेक्शन रेशोज क्या है 2 3 4 A1 B1 C1। अब सेकंड लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है x2 3 x - x2 y - y2 k z - z2 कितना है 0, ये z - 0 है और इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है A2 B2 C2 क्या है 1 3 1 3 1। तो इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखिए x2 - x1 3 - 1 कितना होगा 2 3 - 1 2 k + 1 ओके और 0 - 1 इज -1 k + 1 3 - 1 is 2 k + 1 0 - 1 और डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 फॉर द फर्स्ट लाइन आर 2 3 4 and direction ratios of second line A2 B2 C2 is 1 3 1। so 1 - 1 1 और 3k 0 3k 0 1 - 1 1 ओके। एक बार चेक कर लेते हैं 3 - 1 is 2 k + 1 0 - 1 is -1। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। After solving the determinant, you will get the value as k equal to 9/2। So 9/2 इसका correct answer है। k value of k is 9/2 and this is the condition if the lines are intersecting each other। और equation और ये condition कहाँ से मिलती है shortest distance 0 होगा if the lines are intersecting। So this was the question number 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -1 2। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड द लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस लाइन के हम डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करेंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन दिया है मुझे 2x - 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 6z - 2। तो इसके डायरेक्शन रेशोज मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x - x1 बाई a इक्वल टू y - y1 बाई b इक्वल टू z - z1 बाई c। जब तक कोई एफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 नहीं आते तब तक हम उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज नहीं बोल सकते हैं। सो हियर इफ दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोई एफिशिएंट 1 है तो ये ए बी सी उस लाइन के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, x - 1, यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, y प्लस 1/3 y प्लस 1/3, 6 कॉमन z माइनस 1/3। So x minus 1 by 1/2 equal to y plus 1/3 upon 1/3। और यहाँ से 6 को भी हम नीचे डिवाइड कर लेंगे तो मुझे मिलेगा z माइनस 1/3 अपॉन 1/6। तो इस तरह से मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशो मिलते हैं 1/2 1/3 1/6, और इससे मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो डायरेक्शन रेशोज विल बी 3:1। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं 3:1। सो दिस इज द वेक्टर b बार होगा। ओके, हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का है। सो पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 having direction ratios ABC, x1 y1 z1 having direction ratios ABC। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन x minus x1 x1 minus minus plus 1 इक्वल टू y minus y1। तो ए बी प्लस 1 होगा इक्वल टू z minus z1 2 अपॉन डायरेक्शन रेशोज है 3:1। as the lines are parallel direction ratios will be same। so 3:1 plus 1 plus 1 minus 2 लास्ट ऑप्शन में है, and this is the answer to this question number 8। now we will move to the question number 9। इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखने का है और इक्वेशन मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। ओके, सो सीआर लाइन का इक्वेशन दिया है मुझे y इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे थोड़ी गलती दिख रही है क्वेश्चन में। आई थिंक दिस इज नॉट y, दिस शुड बी z। तो इसे हम z लेते हैं, दिस शुड बी z, तभी आंसर करेक्ट होगा। देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे होना चाहिए z। ओके, तो अब इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ 4x, इस इक्वेशन को लिखूंगा 4x इक्वल टू 3z माइनस 5। तो ये बन जाएगा x अपॉन 1/4, 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 5/3 अपॉन 1/3 एंड y इक्वल टू। तो यहाँ से मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज पता चल जाते हैं। डायरेक्शन रेशो जिस लाइन के, अब ये कार्टेशियन फॉर्म मिल गया, राइट। y कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कोऑर्डिनेट फिक्स है यानी सेकंड डायरेक्शन रेशो जी 0। y कोऑर्डिनेट फिक्स है तो सेकंड डायरेक्शन रेशो जी 0। पहला डायरेक्शन रेशो 1/4, लास्ट का डायरेक्शन रेशो 1/3। लाइक दिस बाय मल्टीप्लाइंग बाय 12, 4 और 3 का एलसीएम। तो डायरेक्शन रेशोज क्या मिल जाएंगे मुझे, 3 0 4। तो ये इस लाइन का ये है कार्टेशियन फॉर्म। ओके, और ये डायरेक्शन रेशोज। तो अब लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, अब ये लाइन देखिए, इस लाइन को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, x माइनस 0 अपॉन 3 z माइनस 5/3 अपॉन 0 और y को मैं इस तरह से, एक मिनट पहले y की टर्म में लिख के दिखाता हूँ।
सो वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, सो वाई माइनस 2/0, वाई इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और z माइनस 5/3 upon 4. Okay, so like this the line is passing through the point 0 to 5/3 and direction ratios of this line are 3, 0, 4. So ये हो गया पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ये बन गया ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज वाला बी वेक्टर. So equation of line is r vector equal to a vector plus lambda times b vector. So ये वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्या है, 0i, यानी डायरेक्टली मुझे 2j प्लस 5/3k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, या क्या होगा 3i plus 4k. So this is the equation of line 2j plus 5/3k plus 3i plus lambda times 3i plus 4k. So this C option is correct. Okay students, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फिक्स है, y की वैल्यू दी है 2, तो मुझे सेकंड डायरेक्शन रेशो 0 लेने का है. अगर x की वैल्यू x1 है तो पहला डायरेक्शन रेशो a0 लीजिए. अगर z इक्वल टू z1 दिया है तो तीसरा डायरेक्शन रेशो आप c0 लीजिए. सो दिस इज द procedure or technique to write the equation of line if any one of the direction ratios among a b c is 0. Now see the next question number 10. इसमें coordinates पूछे हैं, coordinates of point on this line. इस line पे ऐसा एक point मुझे find out करने का है, which is at a distance of 3 units from this point 1, 2, 3. So already this line is passing through the point 1, 2, 3. So here x coordinate 1, y coordinate 2, z coordinate 3, x minus x1, y minus y1, z minus z1. तो ये पॉइंट है a 1, 2, 3, और इस पॉइंट से मुझे 3 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट चाहिए. ए पॉइंट से बी डिस्टेंस का डिस्टेंस 3 है और इसका भी डिस्टेंस 3 है, तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन रेशियोज लिखने पड़ेंगे इस लाइन के. सो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 माइनस 2, 2 डायरेक्शन रेशियोज है 1 माइनस 2, 2. तो अब मैं लिखूंगा उनके डायरेक्शन कोसाइंस. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट विल बी 1/3, 1 ये होगा रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4. सो इट इज 3 होगा, तो 1/3 माइनस 2/3, 2/3. सो these are the direction ratios of the line. अब ये डायरेक्शन रेशियोज, these direction ratios यानी ये होगा LMN. So these are the values of what, LMN. तो ये this is what, L. डायरेक्शन कोसाइंस LMN होते हैं. सो दिस इज M एंड दिस इज N. और ये डिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं हम R. डिस्टेंस कितना दिया है, ए पॉइंट से 3, और ये दिस पॉइंट, इस पॉइंट्स को कहेंगे हम x1, y1, z1, एंड दिस इज द फॉर्मूला of the point, coordinates of the point which is at a distance of r units from the point x1, y1, z1 on the line whose direction cosines are L, M, N. तो फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस माइनस LR, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस माइनस MR, z कोऑर्डिनेट z1 प्लस माइनस NR. तो यहाँ पे देखिए x1 यानी 1 प्लस माइनस L कितना है मेरा 1/3 इंटू आर डिस्टेंस 3, y1 कितना है 2 प्लस माइनस m कितना है माइनस 2/3 इंटू डिस्टेंस फिर से 3, z कोऑर्डिनेट कितना है 3 प्लस माइनस n कितना है 2/3 इंटू आर कितना है फिर से 3. ओके, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस माइनस 1, 2 प्लस माइनस माइनस 1 नहीं माइनस 2 होगा, 3 विल गेट कैंसल. ओके,
और 3 प्लस माइनस 3 3 कैंसिल। तो मुझे यहाँ से 2 पॉइंट्स मिलेंगे बाय टेकिंग प्लस साइन, बाय टेकिंग माइनस साइन। प्लस साइन से 1 प्लस 1 2, माइनस साइन से 1 माइनस 1 0, प्लस साइन से y कोऑर्डिनेट 2 माइनस 2 0, माइनस साइन से 2 प्लस 2 4, प्लस साइन से 3 प्लस 2 5, माइनस साइन से 3 माइनस 2 1, 2 0 4 0 4 1, 2 0 5 0 4 1। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। और इस फॉर्मूले को आप प्लीज नोट कीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट at a distance of r units from the point x1 y1 z1 on the line having direction cosines l m n। this is x1 y1 z1, this is r। तो ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो दिस वाज 10 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, वेरी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, तो मेरे पहली लाइन है x इक्वल टू वाई, जेड इक्वल टू 0। इस लाइन के मुझे डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बाय 1 इक्वल टू वाई बाय 1, जेड इक्वल टू 0, जेड कोऑर्डिनेट फिक्स है यानी लास्ट का डायरेक्शन रेशियो 0 है, 1 1 0 1 1 0, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट। अब सेकंड लाइन क्या है? सेकंड लाइन है x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। सो बोथ x and z coordinates are 0, so it means this is the equation of what? y axis। y axis पे हमेशा जैसे x axis पे y और z coordinate 0 होते हैं, तो y axis पे x और z coordinate 0 होते हैं, z axis पे x और y coordinate 0। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 लिखते हैं, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 लिखते हैं, z एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू y इक्वल टू 0 लिखते हैं। सो x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस इज y एक्सिस and the direction ratios of y axis are 0 1 0। x एक्सिस के 1 1 0, y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 0 1 0, z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 0 0 1। सो हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हैं। सो दिस डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट a1 b1 c1, a1 b1 c1, और दिस इज a2 b2 c2। Formula of the angle between the two lines a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square। So a1 e2 1 into 0 0 plus b1 b2 1 into 1 is 1 plus c1 c2 0 into 0 is 0 by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square, so it will be 1 plus 1 into root of a2 square plus b2 square plus c2 square, so it will be 0 plus 1 plus 0। तो ये बन जाएगा 1 by square root of 2 and like this 1 by root 2 cos theta है, तो थीटा कितना मिलेगा? 45। so answer to this question is 45 and this was 11। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पूछा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस r क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस a एंड r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। सो इसका मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट देता हूँ, एक वेरी सिंपल शॉर्टकट है। अगर आपके दो लाइंस हैं r क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस a और आपकी दूसरी लाइन है r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b, then point of intersection of these two lines is a plus b। This is the very important shortcut। Point of intersection of these two lines r cross a equal to b cross a and r cross b equal to a cross b is a plus b। So problem is solved, very simple। a plus b vector is the position vector of point of intersection of these two lines। So a plus b यानी I plus j plus b vector क्या है? 2i minus k। So like this it is 3i plus j minus k। So this is the first answer to this question। आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस r cross a equal to b cross a and r cross b equal to a cross b is a plus b।
So this is very important shortcuts, please note this. Now we will solve the next question number 13. So यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम सिंपल है। यहाँ पे मुझे ये देखने का है if x coordinate of a point on the line joining these two points is 4, x coordinate अगर 4 है तो मेरा z coordinate क्या होगा। तो पहले तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूँ पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज 2 2 1 एंड मेरा सेकंड पॉइंट है 5 1 -2। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होगा। So equation of line is passing through 2 points x1 y1 z1 x2 y2 z2 x minus x1 by x2 minus x1 कितना होगा 3 इक्वल टू y minus y1 is 2 y2 minus y1 होगा 1 minus 2 minus 1 और z minus z1 is 1 upon z2 minus z1 minus 2 minus 1 minus 3 equal to lambda. So this is the equation of line. लेकिन इस लाइन पे मुझे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4, x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4, तो यहाँ से मुझे लैम्डा मिल जाएगा। x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 माइनस 2/3 इक्वल टू लैम्डा, और इस तरह से लैम्डा मुझे मिल गया 2/3। ओके, सो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2/3 x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 4। सो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2/3 मुझे z कोऑर्डिनेट भी मिल सकता है। सो z माइनस 1/-3 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा कितना है मेरा 2/3, 3 विल गेट कैंसल। z माइनस 1 इक्वल टू -2, तो मुझे z कोऑर्डिनेट कितना मिला -1। सो -1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, -1। ओके, सो द लैम्डा इज 2/3 एज द x कोऑर्डिनेट इज 4, और उसी लैम्डा को यूज करके मैंने इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है। Now I will solve the next question number 14। एक्यूट एंगल पूछा है। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने पहले लाइन की इक्वेशन लिख के रखे हैं। सो देखिए, एक्यूट एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स। सो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, x माइनस 1/1 यहाँ पे लिखा है मैंने। अब यहाँ से 2y है तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन लेके इस इक्वेशन को लिखा है, y प्लस 3/2 अपन 3/2 z प्लस 5/2। तो यहाँ से मुझे डायरेक्शन रेशियोज मिल सकते हैं 1 3/2 1 3/2 5, यानी डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3, सॉरी दिस इज नॉट 5, लास्ट का 5 नहीं है, दिस इज नॉट 5, so this is what 2, so 2 3 4, these are the direction ratios of first line। लेकिन सेकंड लाइन को मुझे फिर से कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इससे मैं यहाँ पे r पैरामीटर दिया है, तो सभी रेशियोज इक्वल टू r आने चाहिए, इक्वल टू r। जैसे लैम्डा पैरामीटर होता है, न्यू पैरामीटर होता है वहाँ, वैसे यहाँ पे r पैरामीटर दिया है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, x minus 2/3 will be equal to r, right। अब y कोऑर्डिनेट इसको मैं लिख सकता हूँ y plus 1/-2, this will be also equal to r, and z minus 2/0 equal to r, तो z कोऑर्डिनेट 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मुझे मिलते हैं 3 - 2 0। So these direction ratios are a1 b1 c1 and these direction ratios are a2 b2 c2। तो यहाँ से a1 a2 मिलेगा 3 × 2 प्लस b1 b2 मिलेगा 3 × -2 प्लस c1 c2 मिलेगा 4 × 0। So -6 plus 6 0, as a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, lines are perpendicular. This is the condition of perpendicular lines, and therefore the angle between the lines is pi/2। So this was the question number 14, and the last question of this lecture। This question is very important। तो इसमें मुझे पूछा है a line passes through the points A and B, then non parametric फॉर्म पूछा है।
तो पहले तो इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो उसका इक्वेशन होता है आर क्रॉस ए इक्वल टू आर क्रॉस ए इक्वल आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। लेकिन मुझे इक्वेशन नॉन पैरामीट्रिक में लिखने का है। ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, यहाँ पे लैम्डा है, तो उसका नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने किस तरह से तैयार किया है, लास्ट लेक्चर भी मैंने इसको आपको समझाया था। इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आपके ध्यान में है तो उसका नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म आप इस स्टेप से तैयार कर सकते हैं। तो इसी को मैं सॉल्व करता हूँ। आर माइनस ए इक्वल टू होगा लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। सो यहाँ पे लैम्डा है यानी स्केलर है, ए वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो उसी तरह से आर माइनस ए वेक्टर और बी माइनस ए वेक्टर पैरेलल हो गए, और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। सो आर क्रॉस बी माइनस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए होगा, ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा मुझे नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यही फॉर्मूला मुझे यूज करने का है। सो बी माइनस ए वेक्टर हम निकालते हैं। सो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। बी माइनस ए वेक्टर 1 + 2 कितना मिलेगा 3i, 3 + 1 कितना मिलेगा 4j, और ये -1 -5 -6k। अब मुझे फाइंड आउट करने का है ए क्रॉस बी वेक्टर। सो इट इज i j k -2 -1 5 ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 3 -1। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट -14i + 3j -5। तो इसमें यहाँ पे अब इसको सब्स्टिट्यूट करने का है, तो लाइन का इक्वेशन मिलेगा आर क्रॉस बी माइनस ए। बी माइनस ए ये वेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इक्वल टू ए क्रॉस बी। दिस इज -14i + 3j -5k। लाइक दिस, दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस फॉर्मूले से आपको ये आंसर मिल जाएगा। बी माइनस ए वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज द नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, आप इसे भी नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी सिलेक्टेड फॉर MSTCT। प्लीज़ आप इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से देखिए, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए, फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं समझ में आता है तो इसके पहले का लेक्चर देखिए, इम्पोर्टेंट फार्मूले एंड रिजल्ट्स ऑफ द टॉपिक लाइन, उसमें मैंने सभी फार्मूले एक्सप्लेन करके दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द टॉपिक प्लेन। उसके भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। उस पर भी हम सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।